they came to church every day. They pray, they worshipped in their mind. वो भी हर रविवार को कलीसिया में आते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वो सारी चीजें करते थे। But in their mind, the enemy is still real. लेकिन उनके दिमाग में शत्रु अब भी हकीकत में है। So despite of walking with Jesus, but still in their mind, the enemy would be still there doing something. प्रभु यीशु के साथ चलने के बावजूद उनके दिमाग में प्रभु यीशु अभी मतलब उनके दिमाग में शैतान अभी हकीकत में है। Yeah. So what happens? That is what happens in our lives. So we are worshiping. We are tuning into the stream. We are drawing from the well. हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम आराधना करते हैं, एक स्रोत के साथ हम जुड़े हुए हैं जिससे हम प्राप्त करते हैं। Yeah, you're reading scripture, but knowingly or unknowingly, somewhere in our mind, the enemy is more real to us. हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मनों में या हमारे विचारों में शत्रु अब भी हकीकत में है। Yeah, so that is what happens in their. So in their mind, the enemy was more bigger here. और ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि उनके मन में शत्रु ज्यादा हकीकत में है। So because they thought that Jesus would do only the things that they were doing. क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु वो ही चीज कर सकते हैं जो वो लोग कर पाएंगे। But can I tell you, my God? Can I tell you something? That my God is not a man. क्या मैं आपसे कुछ कहूँ कि मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, He is God. वो परमेश्वर है, He is one true God. वो एक सच्चा परमेश्वर है। Yeah, of course he is referred to as a son of man. हाँ, वो एक मनुष्य का बेटा करके भी कहा गया है। Of course he was a human being, that's true. हाँ, वो एक मनुष्य था, ये बात सच है। But he is not someone who will function as per a human. लेकिन वो ऐसा नहीं है जो सिर्फ मनुष्य के ना ही कार्य करता है। So some of them, they were thinking, if you are Jesus, then you should also come in the boat, na? उनमें से कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि अगर तू प्रभु यीशु है तो तू भी नाव में आ। So why are you on the waters? Come in the boat. तो तू पानी पर क्यों है, तू नाव में आ। So but can I tell you that when you spend time in the presence of the Lord, you do things differently. लेकिन क्या मैं आपसे कहूँ, जब आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताते हैं उसकी उपस्थिति में, तो आप चीजें अलग करते हैं। You don't think as per normal humans. आप एक साधारण व्यक्ति या इंसान के नहीं सोचते। You don't think the good way. आप आपको जो अच्छा लगता है वो तरीका नहीं सोचते। You think the God way. बल्कि आप परमेश्वर का तरीका सोचते हैं। So in your life, always keep this thing in mind that good, whenever you feel there is anything good, just remove one letter from it and replace it with God. Good decision or God decision. आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा लाइक GOOD गुड आता है तो उसमें से एक लेटर को आपको हटा के उसके जगह पे आपको गॉड मतलब परमेश्वर को रखना है। Yeah, good way or God way. अच्छा रास्ता या परमेश्वर का रास्ता। In my mind, I can say this is good, but I need to hear it from the Lord. Is this as per my God? अगर मेरे मन में लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन मुझे परमेश्वर से पूछना है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है? Because I'm telling you, a good way might be good, but a God way will always be much better than what we can think. क्योंकि हमारे दिमाग में अगर अच्छा रास्ता जरूर अच्छा होगा, लेकिन जो परमेश्वर का रास्ता है वो अच्छे से भी कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। So if we read from the previous scriptures, अगर हम उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, so where is Jesus coming from? यहाँ पे प्रभु यीशु कहाँ से आ रहे हैं? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। Yeah, amen. So where did Jesus go? यहाँ पे प्रभु यीशु कहाँ पर जाते हैं? Jesus went for praying in the night. प्रभु यीशु रात में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। So Jesus went to a place of praying. प्रभु यीशु प्रार्थना की जगह पर जाते हैं। Yeah, so he did not go for rest in the night. वो रात में आराम करने के लिए नहीं जाते हैं। Okay, he did not say that okay, log out time now, I need to now it's my time, it's resting time. Yeah. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो रात हो गया, लॉग आउट का टाइम है, अब ये मेरा समय है, आराम का समय है। So this is what happens. I will share my personal. So when I log out, all I want to do is go home and sleep.
और मैं मेरे बारे में अगर कहूँ तो जब मेरा लॉग आउट होता है तो मुझे बस एक ही चीज़ करना रहता है कि मुझे घर जाना है और जाके सोना है। Okay, so that is I would not even prefer to eat food because I'm tired. I want to sleep. I want to rest. मैं खाना खाने का भी नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं थका हुआ रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे बस आराम करना और Okay, सोना है। but what is happening is I have spent my entire day working and you know putting all my time and effort, my concentration, the quality time of my day in my work. और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना पूरा दिन का जितना समय है जो एक क्वालिटी टाइम होता है वो मैंने अपने काम में बिता दिया। Yeah, but what happens is Jesus here, if you see, so Jesus has ministered for the entire day. यहाँ पे अगर हम प्रभु यीशु को देखते हैं तो वो पूरे दिन उन्होंने सेवकाई की होती And है, in the night he goes to pray. लेकिन रात में वो प्रार्थना करने के लिए जाते He's हैं। praying alone. वो अकेले प्रार्थना करते हैं। So if Jesus being the Son of God, Jesus being God himself, if he can pray, how much are we supposed to pray? अगर प्रभु यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर होने के नाते अगर वो प्रार्थना करता है तो आपको और मुझे कितना जरूरी है प्रार्थना करना। Come on, this cannot be my excuse that I'm tired. If Jesus is not giving excuses, how can I give excuses that I'm tired? तो ये मेरा बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं थका हूँ। अगर प्रभु यीशु के पास कोई बहाना नहीं है प्रार्थना करने के लिए तो आपके और मेरे पास बहाना क्यों है? Yeah, so we serve a God who is a busy God. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बहुत ही व्यस्त है। He is busy 24/7. वो 24 घंटे 7 दिन व्यस्त रहता Yeah, है। so he is, you know, there are a lot of things wherein he is looking into, he's in the business of, you know, doing things constantly. वो एक ऐसे व्यवसाय में है जहाँ पे वो चीजें लगातार करता रहता है। But in all this, when we call him, he stops for us. लेकिन इन सारे चीजों में जब हम उसके नाम को पुकारते हैं वो हमारे लिए रुकता है। So he doesn't say that I'm busy. वो ऐसा नहीं कहता कि मैं व्यस्त So हूँ। when he doesn't say that I'm busy, he responds to us, he stops for us. How much are we supposed to chase him? How much are we supposed to stop for him and spend time with him? अगर वो हमसे नहीं कहता कि मैं व्यस्त हूँ और वो फिर भी हमें उत्तर देता है तो आपको और मुझे कितना जरूरी है कि हम भी उसके लिए तैयार रहे। Because the time that we spend in his presence, it is not a waste of time, it is an investment. क्योंकि जो समय हम उसकी उपस्थिति में बिताते हैं वो हमारा समय बर्बाद नहीं होता बल्कि वो समय हम इन्वेस्ट करते हैं। Yeah, because there is a transaction that happens. So whenever we spend time in his presence, there is an impartation which is happening. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक लेन देन होता है। जब भी कभी हम उसके साथ समय बिताते हैं उसकी उपस्थिति में तो उसके तरफ से हमारे ऊपर कुछ उतरता है। So you only grow when you spend time with him. आप तभी बढ़ते हैं जब आप समय उसके साथ बिताते हैं। And I'm telling you, all the voices that you hear when you're spending time with him, that is him talking to you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो समय आप उसके साथ बिताते हैं बात करते वक्त That is him talking to you. वो ही है जो आपसे बातें करता है। So he is a God who doesn't take time to respond. He responds immediately the moment we call upon his name. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो समय नहीं लेता आपको उत्तर देने के लिए बल्कि आप जैसे उसे पुकारते हैं वो तुरंत आपको उत्तर देता है। So the more we pray, the more we grow. There is no coming to a place of stopping or pausing in our growth. और जितना हम प्रार्थना करते हैं जितना हम बढ़ते हैं हम उतना उसमें आगे जाते हैं। Yeah, so it is for our benefit, our spiritual benefit that we pray. ये जो प्रार्थना है ये हमारे आत्मिक लाभ के लिए है। So here when Jesus, what Jesus is doing, Jesus goes to a place of prayer at night. यहाँ पे प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रभु यीशु प्रार्थना की जगह पर जाते हैं रात में, where he is praying alone. जहाँ पर वो अकेले प्रार्थना करते हैं। He is praying alone. वो अकेले प्रार्थना करते हैं। See, that is the time which is decided for his time to pray alone. ये एक ऐसा समय है जो उन्होंने वो
निर्णय लेते हैं कि जहाँ पे वो अकेले प्रार्थना See, करेंगे, he could have taken his disciples or his closest disciples like Peter and John with him, but he goes alone. वो ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने चेलों को भी साथ लेके जा सकते थे, या तो एटलीस्ट उनके जो सबसे करीबी चेले हैं पतरस और यूहन्ना, वो उन्हें भी लेकर जा सकता So, था। so in our week, we also have we have our family meeting. We would have our family devotion. We would have we join the stream. We tune into the stream. We come to the church. But it is also important for us to pray alone. हमारे भी घर में हम एक जो कुटुंबिक प्रार्थना करते हैं, फिर हमारे स्रोत से जो हमारे जितने भी मीटिंग्स होते हैं हम वो सारे अटेंड करते हैं, बल्कि उसके अलावा हमें हमारा व्यक्तित्व प्रार्थना करना भी उतना ही जरूरी है। Because that alone, that personal time with God, it is very important in our lives. क्योंकि वो जो अकेलेपन का समय है परमेश्वर के साथ, वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। Yeah. So here, how is Jesus able to walk on water? यहाँ पे प्रभु यीशु कैसे पानी पर चल सके? Because he's coming from a place of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना की जगह से आते हैं। Yeah, he's coming from a location where he has soaked himself too much in the presence of God. और वो एक ऐसे स्थान से आते हैं जहां पर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरीके से भिगो दिया Yeah, था। so he soaked himself so much that now even the waters cannot soak him. और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को उसकी उपस्थिति में इतना भिगो दिया था कि पानी भी उन्हें भिगा या डुबा न सकी। Amen. He was so one with the Lord. वो परमेश्वर के साथ इतने एक हो गए थे, He was so one with God वो परमेश्वर के साथ इतने एक हो गए थे that now he is walking on the water. कि अब वो पानी पर चलने लगे। You know. So this is the difference when we soak ourselves in the presence of God. ये एक अंतर है कि जब भी हम भी अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में डुबा देते We हैं, do things differently. तो हम भी चीजें अलग तरीके से We करने don't लगते think हैं। we don't do things the human way. हम वो चीज नहीं करते जो मनुष्य कर रहे हैं, So we do things the God way. हम चीजें परमेश्वर के तरीके से करने लगते हैं। Yeah. So this is the scripture that teaches us. ये वचन है जो हमें सिखाता है। Okay. So he said that I'm coming from a place of prayer. वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना की जगह से आ रहा हूँ। So this is what the word is telling you. We can also do wonders when we come from a place of prayer. यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम भी अद्भुत कार्य को कर सकते हैं जब हम प्रार्थना की जगह से आते So हैं। this is my personal experience. I'm sharing with you. This word has ministered me before. और ये मेरा एक व्यक्तित्व एक्सपीरियंस है कि इस वचन ने पहले भी मुझसे सेवा की है। There were instances in my life where you know there were instances in my life where there were troubles and I just ran and I failed big time. और ऐसा भी चीज हुआ है कि मेरे जीवन में कुछ परेशानियां आई और मैं बस वो परेशानी के लिए दौड़ता हुआ गया और मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया। Yeah, but the same instance when it was repeating, I prayed and I went and I returned victorious. और जब एक ही चीज वापस मेरे जीवन में हुआ, लेकिन दूसरे वक्त उधर वहां जाते वक्त मैं प्रार्थना की जगह से जब गया तो मैं विजय प्राप्त करके लौटा वापस। So from experience I'm telling you, we can do wonders when we can do things from the place of prayer. तो मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि जब हम प्रार्थना की जगह से कहीं भी जाते हैं तो हम बहुत ही महान कार्य कर सकते हैं। The only reason things may not work for us is because maybe we are not coming from the place of prayer. एक ही कारण है कि चीजें हमारे लिए काम नहीं करती है कि शायद हम प्रार्थना की जगह से नहीं आते हैं। Yeah, so come on, prayer is not an event. Prayer is not a ritual. It's a lifestyle. क्योंकि प्रार्थना जो है ये एक इवेंट या एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। So when someone says, "Where are you coming from?" Tell them, "I'm coming from a place of prayer." अगर कोई आपसे कहे कि तू कहाँ से आता है, तो उससे कहे कि मैं प्रार्थना की जगह से आ रहा हूँ। So where are you going? I'm going from the place of prayer. अब तुम कहाँ से जा रहे हो तो कहना कि मैं प्रार्थना की जगह से जा रहा हूँ। How are you going? I'm going from the place of prayer. तुम कैसे जा रहे हो तो कहना कि मैं प्रार्थना की जगह से जा
चाह रहा हूँ. Come on. So when I'm saying prayer should be our lifestyle, it should not be our routine or our habit. It should be our lifestyle. अगर यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रार्थना हमारा जीवन शैली होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रूटीन या एक ऐसा रोजमरोज का काम नहीं होना चाहिए हमारे लिए, बल्कि वो एक जीवन शैली बन जाना Because चाहिए. routines can break, habits can break, routines can change, but lifestyle remains and increases. क्योंकि जो रोजमरोज की चीजें हैं और आदतें हैं वो टूट सकती है, लेकिन जीवन शैली कभी नहीं टूटती. So what do? I pray. तो मैं क्या करता हूँ? मैं प्रार्थना करता हूँ. Come on, we need to turn to our neighbor and say that I pray. अपने पड़ोसी से देख कर कहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ. Yeah, we come from a place of prayer. हम प्रार्थना की जगह से आते हैं. Come on, he was praying and the disciples were terrified. वो प्रार्थना कर रहा था और यहाँ पर चेले घबरा जाते हैं. So no one told him, but he is here. किसी ने उससे नहीं कहा, लेकिन वो वहां पर पहुंचता है. No one told him that your disciples are in trouble. किसी ने उससे कहा नहीं कि तेरे चेले खतरे में हैं. So what I'm trying to tell you, it is not that God doesn't know your issues. इसका मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपकी समस्याएं पता नहीं हैं. It is not that God doesn't know your challenges. कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपकी तकलीफें पता नहीं हैं. But you know, because I'm telling you that Jesus is coming from a place of prayer. क्योंकि प्रभु यीशु प्रार्थना की जगह से आ रहे हैं. Amen. So what do? Even we soak ourselves in the place of prayer, in prayer. तो हम क्या करते हैं? हम भी अपने आप को प्रार्थना की जगह में डुबो देते हैं. Because prayer will attract prayer. क्योंकि प्रार्थना ही प्रार्थना को आकर्षित करता है. So you see, one language will help two people communicate. अगर हम देखते हैं तो एक भाषा दो लोगों की मदद करता है वार्तालाप करने में. So the same language will help. So the same language, when we are speaking, when me and her, and if we are speaking the same language, it will help us communicate. अगर मैं एक भाषा की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं और वो हम दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मदद करेगा कि हम इसमें वार्तालाप कर सकते But हैं. when someone speaks some other language, लेकिन जब कोई और आकर कोई दूसरी भाषा बोलता है, you will not be able to communicate with that person. तो आप उसके साथ वार्तालाप नहीं कर पाएंगे. So what I'm saying is, Jesus is speaking the language of prayer. और मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु यहाँ पर प्रार्थना की भाषा बोलते हैं. So when we speak the language of prayer, we are able to do the things that which he is doing. और जब हम भी प्रार्थना की भाषा बोलने लगते हैं, तो हम भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो वो कर रहा है. Amen. So you see what happened. If you read the previous scriptures, can you read that verse for me? After he had dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself. वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था. Yeah, he was alone there. वो अकेला था. He sent his disciples ahead. उसने अपने चेलों को आगे भेजा. He sends the disciples and go to other place and he prays there. उसने अपने चेलों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया. For whole night he is alone. पूरी रात वो अकेला है. And now the disciples are in the boat. और अब चेले नाव में हैं. You know, and then there are waves and storms against their boat. और यहाँ पर इनके नाव के खिलाफ लहरें और तूफानें उठती हैं. And now Jesus, he's standing in front of their boat. और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके नाव के सामने खड़े हैं. And the Bible says they got terrified. और वचन ऐसा कहता है कि वे घबरा गए. And because now they don't understand what's happening, they say it's a ghost. और अब वे नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो वे कहने लगते हैं कि ये भूत है. Verse 27, it says, but Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. और 27वें वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत. So we cannot fear in the presence of God. प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम डर नहीं सकते. We have to train our mind in that manner. हमें अपने दिमाग को उस तरीके से सुशिक्षित करना है. That when we pray, when we grow in our lifestyle of prayer. जब हम प्रार्थना करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रार्थना के जीवन शैली में,
now we have grown so much that now Jesus is compelled to reveal himself to us. और अब हम इतने बढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करने के लिए विवश हो जाता Come है। on, now we have come to a place where an enemy cannot even, now you are a threat to the enemy, so he cannot even be visible to your eye. और अब ऐसे स्थान में आप पहुंच जाते हैं कि आप शत्रु के लिए खतरा बन जाते हैं कि शत्रु आपको दिखेगा भी नहीं। So it's only Jesus who is going to reveal himself to you. तो अब सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो आपको दिखेगा या आपके सामने जाहिर होगा। Yeah, and when it happens, do not be afraid. और जब ऐसा होगा आपको डरना नहीं है। Take courage. धाड़स बांधना है। Take courage because he is there. धाड़स बांधना है क्योंकि वो खुद यहाँ है। Take courage because he is here. धाड़स बांधना है क्योंकि वो यहाँ है। Do not fear. डरे नहीं। Do not fear because now your growth, because when all this time when you have been saying, Jesus, reveal yourself, and now all this time you have been hearing, but now you have come to a place, now you have grown so much that now Jesus is provoked to actually reveal himself. हम इतने समय से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं कि प्रभु यीशु तू मुझे दिख, अपने आप को मुझ पर जाहिर कर। लेकिन जब हम बढ़ जाते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे प्रभु यीशु विवश हो जाते हैं कि वो आकर खुद को हमारे सामने जाहिर करे, Do not fear that time. उस समय हमें डरना नहीं है, Recognize who is in front of you. बल्कि पहचानना है कि आपके सामने कौन है। Yeah. Further words, verse 28, it says, then Peter called to him. और 28वें वचन में ऐसा लिखा है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Amen. So what is the first thing that Peter is doing here is, he says that, Lord, if that's you, Lord, if it's really you, call me, it says. और यहाँ पे सबसे पहली चीज पतरस क्या करता है, वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है। So Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. और वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Amen. Meaning I'm not coming to you. मतलब मैं तेरे पास नहीं आ रहा। You know, meaning I'm not coming to you being Peter. मतलब मैं तेरे पास पतरस बन के नहीं आ रहा। I want to come to you just as you came to me. मैं तेरे पास वैसे आना चाहता हूँ जैसे तू मेरे पास आया है। So now I want you to teach me how you did this. अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे भी सिखा कि तूने ये कैसे किया। The next verse, so Jesus is telling him to come. हाँ, तो दूसरा वचन प्रभु यीशु से कहता है कि आ। Yeah. So you see, Jesus is now, because Peter is saying him that Jesus call me. क्योंकि पतरस उससे कह रहा है कि प्रभु यीशु मुझे बुला। So Jesus is saying him come. और प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि आ। Come, just come. आ, बस आ। Jesus is not saying that, go to a season of prayer or, there is a protocol, you cannot walk, Jesus is not saying all that. Jesus is just simply telling him to come. प्रभु यीशु ने उससे ऐसे नहीं कहा कि पहले तू प्रार्थना के मौसम से होकर आ, फिर तू मतलब उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु ने उससे कहा कि बस तू आ। So what did Peter do? तो पतरस ने क्या किया? If that is you, tell me to come to you walking on the water. अगर वो तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। Come on, where did Jesus come on from the water? From where did Jesus come to on the water? प्रभु यीशु कहाँ से आते हैं पानी पर? He is coming from the place of prayer. वो प्रार्थना की जगह से आते हैं। Now it is only Peter in the boat who is talking to Jesus amongst the disciples. और यहाँ पर सिर्फ पतरस ही है उन चेलों में से जो प्रभु यीशु से बातें करता So है। out of all the disciples, it is only Peter who says that, okay, that he's saying that if it is really you,
I'm interested in this. और यहाँ पर देखते हैं उन सारे चेलों में से सिर्फ पतरस ही उससे बातें करता है और कहता है कि यदि वो तू ही है तो मैं दिलचस्पी रखता हूँ तेरे पास आने की। So Lord, if it is you who is doing it, I'm interested. और वो कहता है कि प्रभु यीशु अगर ये तू कर रहा है तो मैं भी इसमें दिलचस्पी रखता So हूँ। I'm not limited to seeing it. I want to do it. अब मैं सीमित नहीं हूँ बस देखने तक के लिए, बल्कि मैं भी इसे करना चाहता हूँ। Yeah. So this looks good to me, ये मुझे अच्छा दिखता है and I want to do it, Jesus. और मैं भी इसे करना चाहता हूँ प्रभु यीशु। But I don't want to get into it if it is not you. लेकिन मैं इसमें नहीं उतरना चाहता यदि वो तू नहीं है तो। I will get into it only if you tell me only if you tell me if it is really you. मैं इसमें तब ही उतरूंगा जब तू मुझसे कहेगा कि हकीकत में Yeah. वो तू ही है। Yeah. So I don't want to get into anything which has nothing to do with you, Lord. मुझे ऐसे किसी चीज में नहीं उतरना जिसका तुझसे या तेरे से कोई संबंध नहीं है। But if you are there, I want to be the first one to be there. लेकिन यदि वो तू ही है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होना चाहता हूँ वहां होने के लिए। So can you call me? क्या तू मुझे बुलाएगा? Can you tell me to come, Jesus? क्या तू मुझे आज्ञा देगा कि मैं आऊं तेरे पास? Because I know for the fact when Jesus you appointed us, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूँ कि जब तूने मुझे नियुक्त किया, you first appointed us so that we could be with you and you would send us. तूने हमें इसीलिए नियुक्त किया कि हम तेरे साथ रह सके ताकि तू हमें भेजे। So which means even if it is looking good to me, I want you to know if it is your will for me. भले ही ये मुझे अच्छा दिखता रहे तो भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये तेरी इच्छा है मेरे लिए। So I want you to tell me to come. तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे कहे कि मैं आऊं। So in my heart I so want to do it. मेरे हृदय में मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा करूं। And I know you love me, you will not get angry on me. मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है और तू मुझसे गुस्सा नहीं होगा। But God, I want to do it your way. लेकिन परमेश्वर मैं इसे तेरे तरीके से करना चाहता Yeah. हूँ। So this looks good to me, but it should also look God to me. ये मुझे अच्छा दिख रहा है लेकिन ये मुझे परमेश्वर की ओर से भी दिखना चाहिए। Yeah. So good way and God way. अच्छा रास्ता और परमेश्वर का रास्ता। So when I feel that Lord, this is what I want to do, but I want your say in this. When you say that yes, that yes, come, I will do it. और भले ही परमेश्वर मुझे दिखता रहेगा कि ये अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी आवाज सुनूं कि तू कहे कि मैं हूँ और आ। So I want to do it in your way, God. मैं इसे तेरे तरीके से करना चाहता हूँ परमेश्वर। You know, something beautiful happens when you do things in accordance with God. और एक बहुत ही सुंदर चीज होती है जब आप चीजों को परमेश्वर के तरीके से करते हैं। So there are certain things that we do because it looks good, कुछ चीजें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा दिखता and there है, are certain things we do because the Lord wants us to do it. और कुछ चीजें हम इसीलिए भी करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। Church, today I'm telling you, there can be nothing else better than what the things that we do which God wants us to do. कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। Amen. So what Peter say, Lord, if that's you, तो यहाँ पे पतरस क्या कहता है कि प्रभु यीशु यदि वो तू ही है, if that's really you, यदि वो हकीकत में तू ही है, so I can't see you clearly right now. मैं अभी तुझे पूरे साफ तरीके से देख नहीं सकता। So I want you to imagine yourself as Peter. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को पतरस के नाई सोचे, कल्पना करें इस वक्त। So he says that, Lord, if it's really you, वो कहता है कि परमेश्वर यदि वो तू ही है, Lord, tell me to come to you walking on the water. तो परमेश्वर प्रभु यीशु तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। Because when you tell me to do it, क्योंकि जब तू कहेगा मुझे करने के लिए, you will tell me to do it exactly the way you do it. तो तू मुझे वैसे ही कहेगा करने के लिए जैसे तूने किया। So see, I'll tell you something about this Jesus. मैं इस प्रभु यीशु के बारे में आपको कुछ कहना चाहता He हूँ। will never tell you to do something that he has not done. वो आपको ऐसा कोई चीज करने के लिए नहीं कहेगा जो उसने कभी नहीं किया हो। So there's nothing that
you are doing right now that Jesus has not done. तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप इस वक्त इस समय कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने नहीं किया है। So there's nothing that Jesus has done and didn't have victory over it. ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभु यीशु ने नहीं किया है और अगर किया है तो उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया है। So he did and he had victory. उसने किया है और उसने उस पर विजय प्राप्त किया है। And he tells us to do the same thing from the place of victory. और वो हमें भी वो ही चीज करने के लिए कहता है विजय के स्थान से। Which means victory will eventually be yours. इसका मतलब विजय आपका होगा। But he's just asking you to do what he did. लेकिन वो आपसे बस वो ही करने के लिए कह रहा है जो उसने किया। See, there are times we do it by our own ways. कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पे हम चीजें अपने तरीके से करते हैं। But today the Lord is saying, can you do it my way? Because when you do things God way, क्योंकि जब आप चीजें परमेश्वर के तरीके से करोगे He is backing you up. तो वो आपको बैकिंग देते हैं। You have God by your side. तो परमेश्वर खुद आपकी ओर से होता है। So there is no room for doubt. इसका मतलब अब संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं You है। just march and you be victorious. आप बस चलते हैं और आप विजयता प्राप्त करते हैं। Because our God is victorious. क्योंकि हमारा परमेश्वर भी विजय का परमेश्वर है। See, there are times when we look at people through our eyes. ऐसा समय आता है जहाँ पे हम लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं। But there is a difference when we look at people through God's eyes. लेकिन बहुत अंतर है इसमें जब हम लोगों को परमेश्वर की नजर से देखते हैं। So this happens with me. There are times when I look at someone through my eyes and I feel like, and that is how I look at that person, that I have my own mindset for it, but at the same time if I look at that person through God's eyes, it is different. और मेरे साथ मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को देखा है अपनी आंखों से और उसके लिए मेरा खुद का एक अलग ही विचारधारा बन गया, लेकिन जब मैंने उसी इंसान को परमेश्वर की नजर से देखा तो मेरी विचार पूरी तरीके से बदल गए। So according to me, my thinking, my seeing would be limited. क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा देखना और मेरे विचार करने में सीमाएं हो सकती है। But when I look at it through God's eyes, लेकिन जब मैं परमेश्वर की आंखों से देखता हूँ I see that there is a lot of potential in this person. तो मैं देखता हूँ कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा काबिलियत है। So it's not just about me, I'm talking about all of us. और इस वक्त मैं सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम में से हर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। When we look at certain people, we only look at them through their biological stature. और जब हम लोगों को देखते हैं तो हम बस उनको वो जो जैसे हकीकत में या शारीरिक तौर पर दिखते हैं, हम उस तरीके से लोगों को देखते हैं। If we only look at them on basis of what they were, where they come from, then we are being limited. अगर हम उन्हें बस इसी तरीके से देखते हैं कि वे कौन हैं और कहां से आ रहे हैं तो हम सीमित हो जाते हैं। But if we look at them through God's eyes, लेकिन यदि हम उन्हें परमेश्वर की आंखों से देखते हैं we can see some prophets and some prophetess. तो हम कोई भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन को हम देखते We हैं। can see people who are being used by God in such a powerful manner. हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर द्वारा बहुत ही सामर्थ्यशाली तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। So sometimes we only want to hear prophet. कई बार ऐसा होता है कि हमें बस प्रॉफिट को ही सुनना होता है। In the process, we fail to recognize that there is a prophet in our own house. और उस प्रक्रिया में हम उस जो हमारे ही घर में एक प्रॉफिट है उसको हम पहचानने में नाकामयाब हो जाते हैं। So let us not be the ones to be limited. तो हम भी एक सीमित करने वाले लोग न बने। Okay, so what I'm trying to tell you is, let's not look down on someone which is valuable in God's eyes. मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी नीचा ना देखे जो परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। So people around us may have potential. जो लोग हमारे आसपास है उनमें बहुत काबिलियत होगी। They may have so much of potential. उनके अंदर बहुत काबिलियत होगी। Even in this house, this church,
there will be people who will have a lot of potential. इस घर में भी, इस कलीसिया में भी ऐसे कितने सारे, कई सारे लोग होंगे जिनमें बहुत सारी काबिलियत है। And it's time we look at ourselves through God's eyes. और ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर की नजर से Amen. देखें, So that we start to look at people through God's eyes. ताकि हम भी दूसरों को परमेश्वर की नजर से देख सकें। And when we do that, और जब हम ऐसा करते we हैं will see growth happening. तो हम बढ़ोतरी को देखेंगे। Yeah, we will see growth happening because we are doing it God's way. हम बढ़ोतरी को देखेंगे क्योंकि हम इसे परमेश्वर के तरीके से करते हैं। Come on, sometimes we don't grow because we are too busy criticizing someone. कई बार हम बढ़ नहीं पाते इसलिए कि हम व्यस्त हैं दूसरों को नाम रखने में या नीचे गिराने में। Yeah, so there was a blessing which was about to come and rest on you, but because it saw you cursing someone, और ऐसा होता है कि बस आशीष उतर कर आकर आपके ऊपर रुकने ही वाली होती it was है, about to rest on you. वो बस आपके ऊपर आकर उतर कर रुकने ही वाली होती है, And it saw you cursing someone. और वो देख लेता है कि आप किसी को श्राप दे रहे हैं। And it says that I was just about to bless this person. और वो कहता है कि बस मैं उतरने ही वाला था इसके ऊपर आशीष बनकर, But he's criticizing. लेकिन ये नाम रख रहा है किसी को। You know God is coming and he's about to bless them. और आप जानते हैं कि परमेश्वर आने वाला है और उन्हें आशीष करने वाला है। So we need to be very careful. हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना We है। need to be very careful with our thoughts and our minds. हमें अपने विचारों में और हमारे सोचों में बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना So है। more than being real to the people around us, we first need to be real to ourselves. तो इससे ज्यादा कि हम लोगों को अपना हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले खुद अंदर से हकीकत बने अपने लिए। So you know we need what we are outside, what we are in the house. We should be the same we should have the same person outside. और वो जो हम अंदर से है वो ही हम बाहर से भी बने। Yeah. So and that is why Jesus says that I'm standing right outside the door. और यही प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, Because if I come in, you will pretend to be good. क्योंकि अगर मैं अंदर आऊंगा तो तुम मुझे अच्छा बनने का दिखाने का कोशिश करोगे। So it's better I don't come in the house. तो बेहतर होगा कि मैं अंदर नहीं आऊं, I just stand outside the house and hear you. मैं बस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूं और तुम्हारी सुनूं। And even when he's standing right outside the house at your door, और भले ही वो आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, and inside your house, you're like, Jesus, I love you. और आपके घर के अंदर आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता This is हूँ, what he says. This is what I want. और फिर वो कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। This is what Jesus longs to hear from us. यही तो है जो प्रभु यीशु कई समय से हमारे मुख से We सुनना be the चाहता है। same inside the house as we be the same outside. और हम हमारे घर में भी वैसे ही है जैसे हम बाहर दिखा रहे हैं। So Peter, he is in the boat. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस नाव में है, And he says, Lord, if that's really you, और वो कहता है कि प्रभु अगर वो तू ही है okay, tell me to come to you. तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। So there's one thing that I like about this Peter here. एक चीज मुझे पतरस की बहुत अच्छी लगी। So he's pioneer. He's being, the good thing about it is he's saying that God, tell me to come to you, me. और यहाँ पर वो कहता है, वो अपने आप को प्रथम रखकर वो कहता है कि प्रभु यीशु मुझे बोल कि मैं आऊं। So he's not being too good saying, tell us all to come. वो बहुत अच्छा नहीं बनता ये कहने में कि हम में से सबको बोल कि हम सब आए। No. Because Jesus, I'm talking to you, so I want you to tell me to come. क्योंकि प्रभु यीशु मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कहे कि मैं आऊं। See, sometimes we stop because the other person doesn't want us to walk. कई बार ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं क्योंकि दूसरा जो है हमारे साथ वो नहीं चलना चाहता। Sometimes our focus in life towards a person is so much that that person matters to us so much that we dedicate our life in like, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा पहले मेरे को।
Yeah. कई बार हमारा फोकस दूसरे की तरफ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपना सब कुछ उसकी ओर लगाने लग जाते हैं। My whole life I want to fix this guy. पूरा जीवन हम उस व्यक्ति को ठीक करने के पीछे लगा देते See, हैं। I'm not telling you to ignore them. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। But there are some people who are beyond our reach now. कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। No matter how much you break your head, they will not understand. आप कितना भी अपना सर फोड़ ले उनके लिए, वो शायद नहीं समझेंगे। So it's better you break your head somewhere else. तो बेहतर होगा कि आप अपना सर कहीं और फोड़े। Amen. So it is better you do something which will benefit the kingdom of God. इससे अच्छा है कि आप कुछ चीजें ऐसा करें जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक हो। Yeah. So Peter here in the boat, he knows that these people are not going to say anything. और यहाँ पर नाव में भी जो पतरस बैठा है वो जानता है कि ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले हैं। So and for him it is like an embarrassment for Peter, because Peter would always pioneer himself when it comes to Jesus. और यहाँ पे पतरस के लिए शायद ये थोड़ा सा शर्मिंदगी होता रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को हमेशा पहला रखा है जब भी प्रभु यीशु की बारी आई। So the disciples would be the disciples would be कि हर बार तेरे को ही पहले जाने का है. So he might have stood up. He said that Jesus, if it is, the moment he would have stand up, Jesus, in the boat, they are already terrified, and he's standing, Jesus, and the disciples are खड़ा हो गया ये. और जैसे ही वो पूरे नाव में अकेला खड़ा होता है देखकर और कहता है कि प्रभु यीशु, तो लोग कहते हैं ये वापस खड़ा हो गया। And let's stop to be people conscious. लोगों को सोचना बंद कर दे। So let's stop what my neighbor is thinking. मेरा पड़ोसी क्या सोच रहा है वो सोचना बंद कर दे। Okay, so I'm encountering my Jesus. I will lift my hands. मैं उठाऊंगा हाथ. मैं मेरे परमेश्वर को मैं देख रहा हूँ रूबरू, तो मैं मेरा हाथ His उठाऊंगा। presence is making me dance. I will dance. उसकी उपस्थिति अगर मुझे नाचने लगा रही है तो मैं नाचूंगा। His presence is making me shout. I will shout. अगर उसकी उपस्थिति मुझे चिल्लाने लगाती है तो मैं चिल्लाऊंगा। I will not control myself in His presence. मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं करूंगा उसकी I उपस्थिति will में। not miss my impartation because of being people conscious. मैं अपने अभिषेक को खोऊंगा नहीं बस लोगों के बारे में सोचकर। Okay, because for me, I cannot afford to lose that moment. क्योंकि मेरे लिए मैं उस क्षण को खोना नहीं चाहता। So it doesn't matter to me if these people are making a mockery out of me. मेरे लिए ये मायने नहीं रखता यदि ये मेरे इस चीज को लेकर मेरी मजाक बना रहे हैं। So it doesn't matter to me if these people call me a fool. मेरे लिए ये मायने नहीं रखता यदि ये लोग मुझे मूर्ख कहे। Because when I'm fool, I'm wise in the eyes of God. क्योंकि जब मैं मूर्ख लगता हूँ तब मैं परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान हूँ। I have tasted the Lord and seen that He is good. मैंने उसे चख कर देखा है कि वो कैसा भला है। So क्या पीटर हर बार तू ही, every time when someone says हर बार तेरे को ही, that's okay. That's absolutely fine. Let that be my identity. हर बार मैं ही. ये ही मेरा परिचय बने कि बस हर बार मैं ही आगे हूँ। हाँ, जिधर जीसस जाएगा मैं पीछे पीछे जाऊंगा. Wherever Jesus is doing, I want to do it. जहाँ भी प्रभु यीशु कर रहा है मैं भी वही करना चाहूंगा। Because अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा. I will not keep quiet in His presence. मैं उसकी उपस्थिति में चुप नहीं I बैठूंगा। will ask. मैं मांगूंगा, पूछूंगा उससे। Because when I will receive when I ask. क्योंकि मैं तब भी प्राप्त करूंगा जब मैं मांगूंगा। Because if I don't ask, I will not receive. क्योंकि यदि मैं मांगूंगा नहीं तो मैं प्राप्त भी नहीं And करूंगा। I will be sitting behind with the crowd. और फिर मैं भी भीड़ के साथ पीछे बैठा रह जाऊंगा। In the boat. नाव में। Allowing the storms to scare me. और मैं अनुमति दूं कि तूफान आकर मुझे डराए। So it's good for me when Jesus is saying, "Fear not, if it is me." It's good for me to stand before someone else does. और ये मेरे लिए अच्छा है कि जब प्रभु यीशु आकर कहे कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ, तो मैं खड़े रहूँ उसके सामने। I will stand up
to locate myself in the eyes of my God. मैं खड़ा रहूंगा ताकि मैं मेरे प्रभु यीशु की नजर में अपने आप को स्थित कर सकूं। I will not keep quiet. मैं चुप नहीं बैठूंगा। I will not be stagnant. मैं रुका हुआ नहीं रहूंगा। I will know what I'm doing. I know what I'm doing and I will keep doing. मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं उसे करता रहूंगा। So if you don't know how to praise, that should not stop me from praising my King. अगर आप नहीं जानते कि उसकी स्तुति कैसे करना है तो वो मुझे नहीं रोके मेरे राजा की स्तुति करने में। Yeah, if you don't know how to praise, how to worship, you can look at me. अगर आप नहीं जानते कि कैसे उसकी स्तुति करनी है तो आप मेरे तरफ देखें। If you think that I'm doing it for a show off, you know, if you think that I'm doing it, if it is being a show off to you, that's your problem, that's not mine. अगर आपको लग रहा है कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं या करने वाला हूं तो वो आपकी समस्या है, मेरा Your नहीं। problem, your responsibility. आपकी समस्या आपकी जिम्मेदारी है। But at the same time, your garden, your responsibility. और उसी समय आपका बगीचा आपकी जिम्मेदारी है। For I know that the Lord has positioned me. क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे स्थित किया For I है। know who I am and whose I am. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। So no matter how much you're criticizing me at the back, तो कोई बात नहीं, तुम पीछे रहकर मुझे कितना भी क्यों ना नाम रख लो। so he's saying that Jesus, if it is you right in front of me, I want you to tell me to come. और वो कह रहा है कि प्रभु यीशु यदि वो तू ही है तो मैं चाहता हूं कि तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी आऊं तेरे पास। And I will come just as you walked on the water. और मैं वैसे ही आऊंगा जैसे तू पानी पर चला। He's saying, Jesus, I'm ready to step out of this boat. और वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मैं तैयार हूँ इस नाव से बाहर कदम रखने I'm के ready लिए। to come out of this fear of dying. मैं इस मरण के डर से बाहर आने को तैयार हूँ।